Good evening everyone at the fag end of this function. Respected Dr. Khokar, respected Dr. Taneja, respected Dr. Daya, Dr. Panu, the senior most people sitting here in my front, probably they would have been my teacher had I chosen to be a veterinary scientist. I just came here, saw the college, went back because in the meantime I got a call for MBBS and I joined MBBS. Otherwise I would have been a part of it. Friends, when Dr. Nepal Singh Verma rang me up and he said, okay, sir, we have a Founders Day and you are supposed to come. First of all, I thought, what an eye surgeon is going to do amongst the agriculture scientists. That was my first reaction. I thought I will be kind of a bull in the China shop. But then I thought over, कि हर जगह पर आप कोई भी काम करें है तो दृष्टि का खेल। है तो आंख का खेल। आंख ऊंची हुई तो दुआ हो गई, आंख नीची हुई तो हया हो गई, आंख तिरछी हुई तो अदा हो गई और आंख फेर ली तो कज़ा हो गई। So then I became confident that yes, I can also do something amongst the agriculture scientists. मैं भी जाकर कुछ ना कुछ बात कर सकता हूँ। आंखों का डॉक्टर हूँ और गलती से वाइस चांसलर बन गया। ऐसे ही खड़े होकर रोज पेशेंट देखता हूँ, लगभग 300 से 400। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, किसी के पास एक चश्मा होता है, किसी के पास 2 चश्मे होते हैं। एक दिन एक पेशेंट मेरे पास आया तो उसके पास 3 चश्मे और उसने तीनों के तीनों लाकर मेरे डायस पर पटक दिए। मैं चिल्लाया। Naturally, you see that is because you have a very small space standing around, you have your equipment, instrument also lying there, plus he puts 3 spectacles there. I said, भाई ये तो 3 क्यों उठा के घूम रहा है? उसने कहा देखो डॉक्टर साहब, ये पहला दूर देखने के लिए। मैंने कहा समझ में आता। मैंने कहा दूसरा, कहता ये नजदीक देखने के लिए। तो मैंने कहा ये तीसरा, तो कहता डॉक्टर साहब ये इन दोनों को ढूंढने के लिए। तो मैंने उसे कहा कि देख भाई, जब तू 3 चश्मों का बोझ उठाए है तो तू आज मेरी बात एक और मान। उसने कहा क्या? मैंने कहा तू 1 चश्मा और रख। उसने कहा डॉक्टर साहब अब तक तो 3 से परेशान कि 3 उठाए, इस बात से परेशान थे, मेरे को ऑलमोस्ट डांट रहे थे, गाली नहीं दी पर डांट रहे थे, तो अब चौथे की बात करते हो। मैंने कहा देख, तूने दुनिया को बाहर से देखने के लिए 3 चश्मे रखे, कभी तूने अपने अंदर देखने की भी कोशिश की? इस चौथे चश्मे का पर्पज है अपने अंदर देखना। एंड बिलीव मी, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नो डिफरेंट. Purpose of education is also to peep inside, and unless and until we can peep inside ourselves, believe me, all the problems which have been enumerated, all the problems which have been listed will not stand in your way if you start looking inside. That is the most important. Somebody asked Michelangelo. Michelangelo, for 3 years he was working with his back down and face up, like he was in a hanging position and doing painting in Saint Vatican City. For 3-4 good years he continued to work. Now, one day he was painting in a corner, absolute corner where nobody could see. Somebody came, he said, Michelangelo, are you mad? कोने में कौन देखने लगा है? तूने सेंटर में इतना अच्छा डोम बना दिया, कौन कोने में देखने लगा? The Michelangelo said,
कि even if nobody is going to see there, God is going to see there. And that is the issue. We must not work, Vice Chancellor is watching us. We must not work with the intention that the director is watching us or the professor is watching us or the senior is watching us. It is most important thing that God is watching us. And with those intentions, believe me, if we'll work, definitely we are going to succeed in our life. I went to Varanasi a day before. It was a national medicals conference where the students of almost 110 medical colleges were participating. And I was supposed to speak on positive mental attitude. Before I was to speak, somebody from Varanasi, you see, Varanasi में लोग तर्क वितर्क करने वाले बहुत होते हैं. He thought हरियाणा का आदमी है. उसने मुझे कहा, सर हम तो हरियाणा में कल्चर के नाम पर एग्रीकल्चर ही सुनते हैं. मैंने कहा भाई ऐसा क्या है? उसने कहा हमारे यहाँ कबीर हुए, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काबू से दोस्ती ना काबू से बैर. हमारे यहाँ तुलसीदास हुए जिन्होंने कहा परहित बसा जिनके मन माही, तैको इस जग में कुछ दुर्लभ नहीं. हमारे यहाँ रविदास हुए. हमारे यहाँ चंद्रशेखर आजाद ने जन्म लिया. हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया. हमारे यहाँ मुंशी प्रेमचंद हुए. हमारे यहाँ जयशंकर प्रसाद हुए. हमारे यहाँ पर इतने लोग हुए. बिस्मिल्ला खां हमारे यहाँ हुए. रविशंकर प्रसाद हमारे यहाँ हुए. पंडित जयराज हमारे यहाँ हुए. तुम्हारे हरियाणा में क्या है? मैंने कहा देखो, हरियाणा ने सदियों पहले भगवान कृष्ण से एक उपदेश सीखा कर्म करने का, और उसके बाद हमें किसी दूसरे उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी. ये है हरियाणा की. और यदि मैं आप लोगों को बताऊं कि भगवान कृष्ण ने क्यों कुरुक्षेत्र की धरती को चुना. कहते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध होने से पहले भगवान कृष्ण दौरे पर निकले. जैसे यूनिवर्सिटी बनानी हो ना सर, तो so much many people from different teams will come up and see the viability, the feasibility factor, so many things they will come and see. Similarly, Bhagwan Krishna, because it was going to be a nuclear war of that time, so he also along with his team roamed around that which should be the suitable area for Mahabharata. Now once he reached Kurukshetra, he saw कि एक किसान जिसकी मेड़ बार बार टूट रही है, पानी उसके खेत में बार बार आ रहा है, मिट्टी लगाने से हट नहीं रहा, तो उस किसान की बीवी ने अपने बच्चे को उठाया और मेड़ में लगा दिया. तो भगवान कृष्ण समझ गए कि जिस धरती पर कर्म की प्रधानता इतनी अधिक हो सकती है कि अपनी कर्म भूमि के लिए मां अपने दिल के टुकड़े को मेड़ में लगा सकती है, उससे अच्छी धरती कोई कर्म का उपदेश देने के लिए हो नहीं सकती. हमने अपनी आंख से जीना. यदि हम ये सोचे इन बैसाखियों पर जिंदा रहें कि कोई मेरी प्रमोशन करेगा, कोई मुझे पीएचडी देगा, कोई मुझे वीसी बनाएगा, तो शायद जीवन में हम सफल नहीं हो सकते. एक सत्य कहानी आपको बताता हूं. देयर वॉज ए पर्सन, एक बूढ़ा आदमी था, मेरे पास आया, 80 साल का था लगभग. उसकी दोनों आंखों में मैच्योर कैटरेक्ट, आप समझते हैं जिसे मोतिया कहते हैं, सफेद मोती. मैंने उसे कहा ताऊ आंख तुम्हारी बनने वाली है. उसने कहा डॉक्टर साहब मैं क्या करूंगा? मेरे घर में 7 बेटे, 7 बहुएं, एक मेरी पत्नी, कितनी आंखें होगी? भाई 7 बेटों की 14, 7 बहुओं की 14 और एक पत्नी. 30 आंखें मेरे घर में हैं. मैं आंख बनवाकर क्या करूं? मैंने उसे कहा देख, अपनी आंख तो अपनी होगी. उसने कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप कोई दवाई लिख दो. यमराज के पांव वैसे ही लटका कर बैठा हूं, यमराज कभी भी ले जाए, इसलिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं. फिर भी मैंने उसे जोर दिया, नहीं माना.
कुछ दिनों के बाद एक समाचार मैंने पढ़ा, 7-8 दिन बाद उसी एरिया में आग लगी और वो बेचारा बूढ़ा घर में आग लग के मारा गया। अब मुझे याद आया कि जब मैंने इसे कहा था तब ये बनवाने को तैयार नहीं था। जो लड़का उसके साथ आया था वो मेरे पास फिर से आया रोता बिलखता। उसने कहा डॉक्टर साहब यदि वो आपकी बात उस दिन मान लेता तो शायद वो जलकर घर के अंदर मरता नहीं, क्योंकि सबने अपनी अपनी जान बचाई, सब लोग भाग गए। उस बूढ़े का ख्याल जब घर के बाहर सब लोग आ गए तब आया, तब तक वो बेचारा जल चुका था। तो इसलिए जिया हमेशा अपनी आंख से जाता है, जिया हमेशा अपने अंदर की आत्मा से जाता है, जिया हमेशा अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से जाता है। कोई और व्यक्ति हमें जिया नहीं सकता, कोई और हमें कुछ दे नहीं सकता। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम लोग जहां भी रहें अपनी आंख से जिए, और दूसरा कभी संघर्ष करने से डरे मत। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, it is, if I'll say, it is a way of life. You have to fight it out. It is a struggle for survival. ऐसा कहते हैं कि एक किसान भगवान से नाराज हो गया। किसान ही हो सकता है भगवान से नाराज, क्योंकि बाकी किसी की लक्ष्मी है, किसी का कोई है, वो सब अपना अपना हर जात के लोग, परंतु किसान जो है वो भगवान तक से पंगा ले सकता है। ये बात मेरी माननी है। एंड यू प्रॉब्लम किसान ने भगवान को कहा कि देख भगवान, तू इतने बड़े विश्व को मैनेज करता है, तेरे को यह समझ में नहीं आती कि बारिश कब करनी है, गर्मी कब ज्यादा करनी है, सर्दी कब ज्यादा करनी है। तेरा जब दिल करता है, जब जरूरत नहीं तब फ्लड्स आ जाएंगे, जब जरूरत नहीं बारिश हो जाएगी। तू एक काम कर, तेरे से नहीं मैनेज होता, तू 1 साल के लिए मुझे दे दे, आई विल मैनेज। ये केवल किसान कह सकता है, भारत का किसान कह सकता है। अब किसान ने जिस समय बिजाई होनी थी, जितना टेम्परेचर चाहिए था उतना टेम्परेचर, जितनी बारिश चाहिए थी उतनी बारिश, सब काम समय से किसान ने 1 साल तक किए और फसल खूब बड़ी हुई, खूब लहलाई, खूब उसमें गेहूं में इतनी इतनी बालियां आई। और जब वो बालियों को छांटने गया तो बालियों में दाने नहीं थे। तब उसकी समझ में आया कि भगवान क्यों वर्षा असमय करता है, क्यों भगवान बर्फ असमय डालता है, क्यों सर्दी असमय करता है और क्यों गर्मी असमय करती है। क्योंकि ऑल दीज थिंग्स दे लीड ऑन टू स्ट्रगल फॉर द प्लांट, एंड इफ द प्लांट डजंट स्ट्रगल तो उसके अंदर दाने कहां से आएंगे। जितना हम संघर्ष करेंगे उतने हमारे अंदर दाने पैदा होंगे, और यदि हम अपने अंदर दाने पैदा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा, हमें साहस का रास्ता अपनाना होगा, हमें बहादुरी का रास्ता अपनाना होगा, जो हमें किसान से सीख सकते हैं। किसान हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि किसान से हम कुछ नहीं सीख सकते। किसान के जीवन एक ऐसा जीवन है जिससे आप जितनी बातें चाहो उतनी सीख सकते हो। आवश्यकता है केवल और केवल उसके तथ्य को, उसकी अंतर भावना को, उसके अंदर की भावना को जानने की। अब जैसे मैंने संघर्ष की बात की, अब यहां पर तो बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, कोई प्लांट साइंटिस्ट है, कोई वेटनरी साइंटिस्ट है, कोई बायो साइंटिस्ट है, कोई एंटोमोलॉजी एक्सपर्ट है। ए बायोलॉजी टीचर वाज टीचिंग स्टूडेंट्स। उसने कहा देखो, पता है ये तितली कैसे निकलती है? बच्चों को समझा रहे थे तितली कैसे निकलती है। प्यूपा से तितली निकलेगी, प्यूपा जब अंडे में से अंडा फूटेगा तब निकलेगी तो तितली बनेगी। वो कहकर बच्चों को चलाएगा। अक्सर आजकल टीचर ऐसे ही करते हैं, शुरू में एक प्रैक्टिकल बताया और टीचर बाहर, बच्चे अपने आप कुछ ना कुछ मिलाते जलाते रहे। ठीक मिला तो भी ठीक, गलत मिला तो भी ठीक, नहीं तो सीनियर की कॉपी उतार के अपना अगले दिन प्रैक्टिकल टीचर को दिखा। अब भागने की भी जल्दी होती है लोगों को, अभी फंक्शन चल रहा है, वाइस चांसलर सर बैठे हैं, चीफ गेस्ट बोल रहे हैं, लोगों को जल्दी है जाने, लोग जाना चाहते हैं। बिकॉज
इस काम के अलावा सब काम है सब दुनिया में। तो अब वो जो दो बच्चे ये प्रोसेस को देख रहे थे, उनमें से एक तो बड़ा धैर्यवान था, पेशेंट था, टॉलरेंट था, वो देखता रहा कि प्यूपा स्ट्रगल कर रहा है अंदर से। और एक ने कहा यार इसने निकलना तो है ही, अंडा आधे घंटे बाद फूटे तो अभी फोड़। उसने उस अंडे को तोड़ दिया। अब अंडे को तोड़ने से क्या हुआ कि तितली तो निकली, पर वो तितली आधे घंटे के अंदर फड़फड़ाकर मर गई। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? द प्रोसेस इज दैट प्यूपा इनसाइड द शेल flickers its wings strongly, and thereby the wings they become strong and colorful. That is what is the biology of butterfly, and we can learn from butterfly that yes, we can also make our life colorful, we can also make our life longer by struggle in our life. So this is what we can learn. We need to learn. But होता क्या है कि हम अपने विजन को ट्यूबुलर बना लेते हैं। यू अंडरस्टैंड ट्यूबुलर? कि बिल्कुल मायोपिक विजन, सेंटर से देखना, बस साइड में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, वी आर नॉट कंसर्न। आपने देखा तेली अपने बैल को जो घूमता है उसकी दोनों आंखों पर पट्टी बांध के रखता है। अब तेली आगे बैठा तो तेल बेचता है, कभी भी देखना आप जाकर, और पीछे बैल बेचारा घूम रहा होता है, उसका तेल निकाल रहा होता है, और ऐसा चलता रहता है। और कोई अंग्रेज भी, क्योंकि उनको तो आते हैं देखने की भी कैसे कैसे क्या क्या होता है, वो पहुंच गया वहां पर देखने के लिए। था वो कोई ऐसा ही फिलोसफर टाइप, जैसे बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज में होते हैं, तर्कशास्त्री। सर आई होप आई एम नॉट एक्सीडिंग माय टाइम। सो अब अंग्रेज ने पूछा कि यार कैसा सतयुग है, देख तेरा बैल अपने आप घूम रहा, तू आराम से बैठा है, और बैल तेरा तेल निकाल रहा है, तू तेल बेच रहा है, तू तो मौज ले रहा है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। मैंने बैल के गले में घंटी बांधी, और बैल की घंटी बजती रहती है, बैल चलता रहता है, और जब बैल रुकता है मैं आगे से उठता हूं, पीछे जाता हूं, बैल के फिर एक कोड़ा मार देता हूं, और बैल फिर चलने लगता है। तो इसलिए बैल को ये पता नहीं लगता कि मेरा कितना स्मार्ट आदमी हूं कि मैं पीछे से आता हूं। उसको नहीं पता मैं पीछे से आता हूं, क्योंकि दोनों तरफ से पट्टी बंधी। अब अंग्रेज ने कहा कि यार देख, तू घंटी बजती रहती है तो तू आराम से सामने बैठा काम करता रहता है। मान ले कि बैल घूमता है तो घंटी बजती है, बैल खड़ा होकर अपनी गर्दन हिलाता रहे तब भी तो घंटी बजती है। तो उसने कहा कि देख भाई, थोड़ा सा परे चल, बैल सुन लेगा तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। हमने भी पट्टियां बांधी है, एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, फार्माकोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी की, पैथोलॉजी की, सोशल मेडिसिन की। और ये आज की शिक्षा पद्धति हमें ये पट्टियां हटाने नहीं देती, और जिस दिन ये पट्टियां हम लोग हटा लेंगे, स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन को जिस दिन हम तोड़ देंगे, believe me, it is an era of interdependence. Believe me, it is an era. Earlier on, people used to say an era of learning and then era of unlearning. Now people say it is an era of learning and unlearning both, because it is unlearning which is very important than learning. Believe me. You have heard the name of Ouspensky. He was the greatest of the mathematicians. He went to Gurdjieff, who was a Sufi saint. और गुरजीएफ के पास गया और गुरजीएफ को कहा, गुरुदेव अपनी मैथमेटिक्स की पूरी, मतलब आप ये देखो, उससे बड़ा कोई मैथमेटिशियन, जो मैथमेटिक्स के लोग हैं वो जानते होंगे, Ouspensky से बड़ा कोई मैथमेटिशियन था नहीं। और फिर वो एक सूफी संत की शरण में जाता है गुरजीएफ की, और उसे कहता है कि गुरुदेव मुझे जीवन जीने की कला सिखाओ। अब गुरजीएफ ने पीएचडी पीछे लगी हुई है इस आदमी की, तो उसने कहा ठीक है भाई, ऐसा कर, आज तो रात हो गई,
कल सुबह पहाड़ी पे मिले। अब उस पेंसिकी ने सोचा जीवन का ज्ञान पहाड़ी पे जाके क्या देगा, पागल हो गया क्या ये संत। उसने कहा कोई बात नहीं, पर जब आया हूं इससे कुछ सीखने, कोई बात नहीं, चलता हूं। गुरुजीएफ सांस चढ़ाता ऊपर पहाड़ी के पहुंचा। गुरुजीएफ एक चाय केतली की भरकर लाए, उस पेंसिकी को कप दिया और ऊपर से चाय डालते चले गए। चाय बाहर गिरती रही। उस पेंसिकी सोचे देखो किस पागल के पास आ गया, इसको इतना भी नहीं पता कि चाय इतनी सी डालनी थी। अब उसने उस पेंसिकी एकदम चिल्लाया। उस पेंसिकी ने कहा कि गुरुदेव ये क्या है, चाय कप में भर चुकी है, आप फिर भी डालते जा रहे हो। तो गुरुजीएफ ने कहा मैं तेरे को यही समझाना चाहता हूं कि तेरा दिमाग भरा पड़ा है मैथमेटिक्स की प्रपोजल से, मैथमेटिक्स की प्रोपोजिशन से, अलग अलजेब्रा, ज्योमेट्री, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है तेरे दिमाग में। तो इनको छोड़, फिर तू परमात्मा को पा सकता है, फिर तू जीवन को पा सकता है। एंड बिलीव मी, व्हाट गुरुजीएफ सेड is truthful today also, because हमने अपनी शिक्षा को केवल और केवल जीविका का साधन बनाया, हमने जीवन जीने की कला कभी शिक्षा में सिखाई नहीं। This is what has happened to our education. हमने अपनी यूनिवर्सिटीज को केवल और केवल, and I say it with full responsibility, डिग्री देने की पाठशाला बनाया। People have increased in degrees, but they have not increased in knowledge. People have lot of information with them, but they are not knowledgeable, they have no wisdom. Believe me, wisdom is getting lost. आज किसी के हाथ पे प्लास्टर लगा हो तो हम उससे क्या पूछते हैं, टूट गया क्या? अरे भाई टूटा है तो प्लास्टर लगा है ना। अर्थी जा रही हो, हम पूछते हैं मर गया क्या? कोई मेरे जैसा टकरा जाए तो वो ये कहेगा नहीं, घुमा के ला रहे तेरे घर में छोड़े। You see, there is lot of information at the press of a button. This is what information as technology has done to us. But there is no knowledge, no wisdom at all. And एक बार इसने, अकबर ने पूछ लिया बीरबल से, अब फिर आंखों की बात करके अपनी बात को समाप्त कर। अकबर ने कहा बीरबल एक बात बता, इस दुनिया में जो आंख के रोगों से पीड़ित है, ऐसे अंधे ज्यादा है या जिनकी आंख है फिर भी अंधे, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है? बीरबल ने कहा महाराज इसका जवाब जो है ना 1 सप्ताह में दूंगा, टाइम तो हर चीज के लिए चाहिए ना। आज अगर कोई वाइस चांसलर कह दे भैया करके लड़ा, तो हम भी तो कहते हैं ना 2 हफ्ते में करेंगे सर, 3 हफ्ते में करेंगे, बीच में पता नहीं क्या क्या आएगा हमारे प्रॉब्लम में। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 1 वीक ग्रांटेड। बीरबल ने चौराहे में गया, जैसा आपका मधुबन है ऐसा ही कोई चौराहा होगा, उस चौराहे पे गया, चारपाई ली और उसको बुनना शुरू कर दिया। जो आए, और साथ में एक बही खाता लिख लिया, जो आए वो पूछे बीरबल क्या कर रहा है, बीरबल उसका नाम लिख लिया। राजा तक भी ये बात पहुंची। अकबर ने कहा चलो चलकर देखते हैं बीरबल क्या कर रहा है, 7 दिन से चारपाई बुन रहा है। राजा फिर गया, चौराहे में गया, बीरबल से पूछा बीरबल क्या कर रहे हो? उसने लिखा राजा का नाम, वही खाता बंद किया और दे दिया, लो महाराज। उसने कहा भाई ये क्या? उसने कहा देखो महाराज, आंख के अंधे तो इस दुनिया में बहुत कम है, जिनकी आंखें खराब हैं और फिर भी, एंड द डाटा आल्सो सेज इट इज 1.38%। बाकी 99% कौन है? जिनकी आंख है फिर भी अंधे। और हमारी एजुकेशन ने प्रिसाइसली हमें ये बनाया कि हमारी आंख हुआ है। हमें उन्होंने पढ़ाया तो बहुत, किताबें तो बहुत पढ़ाई, मैंने घर बहुत देखे, घरों के बाद नाम बहुत देखे, नामों के साथ ओहदे बहुत देखे, परंतु आदमी नहीं बने। This is what our education has done to us. And believe me, यदि हम एजुकेशन में बच्चों को लर्निंग, अनलर्निंग और बच्चों को अपने अंदर झांकने की कला नहीं सिखाते, तो इट इज नो एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद सेड
that every child has some divinity in him or her. And the purpose of education is to take out that divinity. So the responsibility lies with we people. That we have to see the divinity of the child and work on the child accordingly. And irony is that हम सबका कैरियर 17 साल की उम्र में हमारे माँ बाप तय कर देते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा। 3 साल से मेरे माँ बाप, जब मैं 3 साल का था, कहने लगे थे कि ये डॉक्टर बनेगा, बड़े वाला इंजीनियर बनेगा। हम इंजीनियर डॉक्टर बन गए बिना ये जाने कि हमारे इंटरेस्ट क्या हो। This happens with everyone, believe me. So therefore it is very important कि हम बच्चे की डिविनिटी देख के, बच्चे के अंदर की दिव्यता देख के उसको ब्रांच दें। रशिया has started doing it. Why can't we do it? We have to see the passion of the child. We have to see the emotions of the child. And therefore, we are not only now talking about IQ. Worldwide people have started talking about EQ and SQ. Now it is the emotional quotient and the spiritual quotient which is more important. You see, we work with left brain. The males, they work with the left brain, and the females, they work with the right brain. And believe me, all the emotions, they are in the right side of the brain. प्रेम, दया, करुणा, ममता आदमी के अंदर नहीं हो सकती। कहीं हम गलत सोचते रहे, ये केवल और केवल औरतों का कहना है, क्योंकि भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया है। और इसलिए this shift has to be from left to right. People say, what is spirituality? Spirituality is nothing but changing yourself from left to right so that your right brain functions. और जिस दिन किसी आदमी के अंदर स्त्रियों के गुण, ये अध्यात्म कहता है कि स्त्रीण गुण आने लगते हैं, वो व्यक्ति आध्यात्मिक होने लगता है। वो व्यक्ति जब आध्यात्मिक होने लगेगा तो वो दूसरों के बारे में सोचेगा, वो दूसरों की सेवा करेगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, आग फिर आंखें आ गई। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की पीड़ा भी कम होगी जरूर, किसी के पांव का कांटा निकाल कर। And on this Founders Day, because it is the Founders Day, the foundation of every institution, the college or the university or the school, has to be very solid. Swami Ram Tirth, believe me, once he went to Japan, he saw bonsais. Bonsais आप लोग तो मेरे से ज़्यादा समझते हैं, छोटे छोटे पौधे। उन्होंने वहाँ पर देखा पीपल का पेड़ इतना सा, बट का पेड़ इतना सा। हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े होते हैं। भगवान कृष्ण का अभी भी 5000 साल पुराना पेड़ हम देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े फैले हुए। He was surprised कि जापान में इतने छोटे छोटे। उन्होंने माली को बुलाया, माली से पूछा, भाई ये क्या है? माली, और इनको कैसे बनाते हो तुम? माली ने कहा, हम इनकी जड़ें काटते रहते हैं। इट इज वेरी सिंपल कि हम इनकी जड़ें काटते रहते हैं, जितनी जड़ कटती रहे पेड़ ऊपर बढ़ता ही नहीं है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू आवर एजुकेशन, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू आवर कल्चर, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू आवर भारतीयता। कि बार बार हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर प्रहार हुआ है, चाहे वो मुगल है, अंग्रेज है, हूण है, शक है, आई डोंट वांट टू नेम, but people have come and they have cut our roots, and that is why we are not growing above. So we have to focus on the root, because catching the problem by root is the most important thing. And if we cannot catch the problem from the root, we will never be able to solve the problem, because catching the root is very important. And why I say so? Because मेरा एक दोस्त था, एक दिन लंगड़ा के चल रहा था, और लंगड़ा के चलने लगा तो उसे आगे ENT वाला मिल गया। ENT वाले ने कहा, देख कुछ दिन पहले मेरे भी पैर में लंगड़ाहट आ गई थी, पर मैंने अपने टॉन्सिल्स निकलवा लिए, मैं ठीक हो गया। उस बेचारे ने टॉन्सिल्स निकलवा लिए, चलना फिर भी लंगड़ा गया। आगे गया तो डेंटल डिपार्टमेंट आ गया। डेंटल वाले ने कहा, भाई देख मैं भी कुछ दिन पहले लंगड़ा के चलता था, पर मैंने अपना दांत निकलवा लिया। लोगों ने कहा अक्ल दाढ़ आ रही है, निकलवा ली तो मैं। अब थोड़ी दूर आगे गया तो सर्जन का महकमा आ गया।
सर्जन ने कहा देखिए लंगराट जो है ना, ये अपेंडिक्स, जब अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो व्यक्ति थोड़ा दबा दबा के चलता है, पैर को उठा उठा के रखता है, और इसलिए मैंने भी अपेंडिक्स निकलवाया, मेरा चलना ठीक हो गया। उस बेचारे ने अपेंडिक्स भी निकलवाया। कुछ दिनों के बाद मैंने उसे देखा, बड़े आराम से चला रहा। मैंने कहा देखा टॉन्सिल निकालने से ठीक हुआ ना? कहता देखो डॉक्टर साहब, ना तो टॉन्सिल निकालने से ठीक हुआ, ना दांत निकलवाने से ठीक हुआ, ना ही अपेंडिक्स निकलवाने में ठीक हुआ। जूते में एक छोटी सी कील थी, वो निकलवाई। So the message is that we have to catch hold of every problem from the root, and if we can do that, ये आयरनी है हमारे सिस्टम की कि हम सब समस्याएं बताते रहते हैं, जड़ में कोई जाना ही नहीं चाहता, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। चाहे आपका डिपार्टमेंट हो, चाहे मेरा डिपार्टमेंट हो, कोई लोग रूट कॉज को पकड़ना ही नहीं चाहते। और जब तक हम किसी चीज की समस्या को जड़ से नहीं पकड़ेंगे तो हम भी बार बार कभी अपना दांत निकलवाते रहेंगे, कभी टॉन्सिल निकलवाते रहेंगे, और कभी अपेंडिक्स निकलवाते रहेंगे, कभी हम रिक्रूटमेंट को रोते रहेंगे, कभी हम पीएचडी को रोते रहेंगे, कभी एडमिशन प्रोसेस को रोते रहेंगे, कभी फाइनेंस को रोते रहेंगे, पर हमारा होने वाला कुछ नहीं। इसलिए यू ऑल आर वेरी सीनियर टू मी, यू ऑल आर मच लर्नेड देन मी। आई डोंट, वैसे तो मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने सोचा था मैं कुछ ना कहूँ, पर कुछ यंग लोग नजर आए तो मैंने कहा भी चलो कम से कम बड़े लोगों के लिए ना सही, नए लोगों के लिए कुछ ना कुछ बात जरूर कहूँ। इसलिए आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको इस फाउंडेशन डे की बहुत बहुत बधाई। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, इम्तिहानों से ना हरगिज घबराना चाहिए, इम्तिहानों से ना हरगिज घबराना चाहिए, ऐसे में खुद को आजमाना चाहिए। सीख ले बांसुरी की जिंदगी से, सीख ले बांसुरी की जिंदगी से, लाख गमों सीने में फिर भी मुस्कुराना चाहिए, फिर भी मुस्कुराना चाहिए। Thank you very much for listening me patiently. Thank you, Dr. Kocher, for inviting me and giving me such a wonderful honor and with such wonderful audience to interact. Thank you, Dr. Taneja. We had wonderful talks with each other. Thank you, Dr. Daya. Thank you, Dr. Panu. And thank you, every one of you. All इस फाउंडेशन डे पर कम से कम हम सब मिलकर अपनी मातृभूमि की जय बोल सकते हैं। अब थोड़ी कंजूसी मत करना। अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो दोनों हाथ अपने बाहर निकालना और मुट्ठी बंद कर लेना। और भारत माता की जय।